ایک نوجوان رات کے وقت ایک سنسان علاقے سے اکیلا گزر رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنے سامنے ایک بہت بڑی مخلوق کھڑی دیکھی۔ وہ مخلوق اتنی لمبی تھی کہ اس کا سر آسمان کو چھوتا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کا جسم کالے دھوئیں کے ستون جیسا تھا جس میں آگ کی لپٹیں جھلملا رہی تھی، اور اس کی آنکھیں جلتے ہوئے کوئلوں جیسی تھی جنہوں نے آس پاس کے اندھیرے کو روشن کر دیا تھا۔ وہ نوجوان خوف سے سن ہو گیا، نہ ہلنے کے قابل رہا نہ بولنے کے۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ جن نے اس سے ایسی آواز میں بات کی جس نے زمین ہلا دی۔ اس نے کہا، اللیل یشہد علی قوتی۔ یہ مخلوقات جنہیں جن کہا جاتا ہے ہمارے درمیان رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں چلتے پھرتے ہیں، ہماری زندگیوں کو دیکھتے ہیں، پھر بھی ہماری آنکھوں سے بالکل غائب رہتی ہیں۔ پر کیا ہوگا اگر یہ پردہ اچانک اٹھ جائے؟ کیا ہوگا اگر انسان اور جن ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ سکیں؟ اس سوال کا جواب آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ اسلامی تاریخ میں ایسے نایاب اور حیران کر دینے والے لمحات آئے ہیں جب یہ رکاوٹ ٹوٹ گئی، جب انسانوں نے جنوں کی دنیا کی جھلک دیکھی، اور جب جنوں نے خود کو ایسی شکلوں میں ظاہر کیا جس نے سب سے بہادر جنگجوؤں کو بھی خوف سے کپا دیا۔ ان خوفناک واقعات کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں، آپ یہ ویڈیو کس ملک سے دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ اسلام سے محبت کرتے ہیں اور اس انسین غیب دنیا کے بارے میں اور بھی جاننا چاہتے ہیں جو ہمارے آس پاس ہے، تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ یہ گہرے اسلامی حقائق شیئر کرتے رہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ جن مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، وہ سانپ، کالے کتے، انسان اور ایسی دوسری شکلوں میں نظر آ سکتے ہیں جو دیکھنے والوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتے، لیکن عام طور پر انسان جنوں کو ان کی اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہماری آنکھیں ان کی ڈائمنشن کو دیکھنے کے لیے نہیں بنی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ہم ہوا یا بجلی کو اپنی ننگی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ وہ وجود رکھتی ہے اور ہم پر اثر بھی ڈالتی ہے۔ ایک اور گہرے واقعے میں جنوں کا ایک گروہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے تلاوت کیے جانے والے قرآن کو سننے آیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں اپنے صحابہ کو بتایا کہ یہ جن ان کے سامنے کیسے ظاہر ہوئے۔ جو صحابہ اس رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے انہوں نے جنوں کو خود نہیں دیکھا، پر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی جگہ بات کرتے دیکھا جو انہیں خالی لگ رہی تھی، ایسے سوالوں کے جواب دیتے دیکھا جو انہیں سنائی نہیں دے رہے تھے، اور ایسی مخلوق سے مخاطب ہوتے دیکھا جسے وہ محسوس نہیں کر سکتے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جنوں سے گفتگو ختم ہوئی تو آپ نے اپنی لاٹھی سے زمین پر نشانات بنائے اور اپنے صحابہ کو بتایا کہ یہ وہ حدیں ہیں جہاں جن کھڑے تھے۔ صحیح مسلم میں موجود ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہمارے آس پاس جنوں کی مسلسل موجودگی کے بارے میں بتایا، خاص طور پر اس پرسنل شیطان کے بارے میں جو ہر انسان کے ساتھ لگایا گیا ہے۔ صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے ساتھ جنوں میں سے ایک ساتھی مقرر نہ کیا گیا ہو۔ صحابہ نے پوچھا، آپ کے ساتھ بھی یا رسول اللہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی اور اس نے اسلام قبول کر لیا یا فرما بردار ہو گیا، تو اب وہ مجھے صرف نیکی کا حکم دیتا ہے۔ جب ہم اس حدیث کا اصل مطلب سمجھتے ہیں تو یہ بہت خوفناک ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جب آپ یہ الفاظ پڑھ رہے ہیں آپ کے ساتھ ایک شیطان بیٹھا ہے، ایک جن جو خصوصاً آپ کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اب تصور کریں اگر انسان واقعی ان پرسنل شیطانوں کو دیکھ سکتے، اگر پردہ اٹھ جائے اور آپ اس جن کو دیکھ سکیں جو ہر جگہ آپ کے پیچھے آتا ہے۔ تصور کریں کہ آپ اپنے کندھے کے پیچھے دیکھیں اور ایک کالی بھیڑی سی شکل جلتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آپ کو گھورتی ہوئی نظر آئے جو آپ کے ہر گناہ پر اطمینان سے مسکراتی ہو، اور جب بھی آپ نماز پڑھیں یا قرآن پڑھیں تو غصے سے منہ بناتی ہو۔ تصور کریں کہ جب آپ اللہ سے دور ہوتے ہیں تو یہ مخلوق بڑی اور طاقتور ہوتی نظر آئے، اور جب آپ عبادت اور ذکر کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو چھوٹی اور کمزور ہوتی ہوئی نظر آئے۔ تصور کریں کہ آپ ایسی جگہوں پر ایسی سینکڑوں مخلوقات کی بھیڑ دیکھیں جہاں گناہ کیے جاتے ہیں، ایسی جگہوں پر جہاں شراب بیچی جاتی ہے، ایسی جگہوں پر جہاں لوگ برے مقاصد کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ کیا آپ رات کو سو پائیں گے؟ کیا آپ اپنی روزمرہ کی زندگی عام طریقے سے گزار پائیں گے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ مخلوقات مسلسل آپ کو گھیرے ہوئے ہیں؟
ये अल्लाह की रहमत है कि उसने इनको हमारी नजरों से छुपा रखा है, क्योंकि अगर हम इन्हें देख सकते तो इसका खौफ बहुत से लोगों को पागल कर देता। इस्लामी तारीख में ऐसे नायाब केस हुए हैं जहां नेक लोगों को जिनों को देखने की सलाहियत अता की गई, और ये मुलाकातें हमेशा खौफ और डर से भरी होती हैं। अजीम आलिम और वली अब्दुल कादिर जिलानी रहीमहुल्लाह, जो सदियों पहले बगदाद में रहते थे, अपने गहरे इल्म और रूहानी ताकत के लिए जाने जाते थे। जिनों के साथ उनके इनकाउंटर्स की बहुत सी ऑथेंटिक कहानियां मशहूर हैं। एक रात जब वो अकेले इबादत कर रहे थे, जिनों का एक गिरोह उनके सामने खौफनाक शक्लों में जाहिर हुआ। वो ऐसी बड़ी मखलूकात के रूप में आए जिनके जिस्मों से आग की लपटें निकल रही थी और उनके चेहरे गुस्से से तड़े हुए थे, ताकि वो उन्हें डराएं और उनकी इबादत में खलल डालें। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी रहीमहुल्लाह ने कोई खौफ नहीं दिखाया। उन्होंने अपनी नमाज और कुरान की तिलावत जारी रखी, और जब जिन्होंने देखा कि वो नहीं डरे तो उन्होंने अपना तरीका बदल दिया। उनमें से एक ने खूबसूरत शक्ल इख्तियार कर ली और मीठी आवाज में बोला, ए अब्दुल कादिर, आपने ऐसा ऊंचा रूहानी मुकाम हासिल कर लिया कि अल्लाह ने तमाम जिनों को आपके ताबे कर दिया है, जैसे वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थे। हमें आपका हर हुक्म मानने का ऑर्डर मिला है। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी रहीमहुल्लाह गहरे इल्म और हिकमत वाले शख्स थे। वो जानते थे कि ये एक चाल है, एक धोखा है, उन्हें मगरूर करने के लिए, ताकि वो अपने मुकाम से गिर जाए। उन्होंने फौरन जवाब दिया, झूठे, अगर तू वाकई अल्लाह की तरफ से भेजा गया होता तो तू जानता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद अल्लाह ने यह ताकत किसी और को नहीं थी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम अंबिया के ख़त्म करने वाले हैं, और उनके बाद किसी को नबूवत या पिछले अंबिया जैसी अनोखी ताकतें नहीं मिलेगी। जब उन्होंने ये अल्फाज कहे तो जिन चीखे और गायब हो गए। इस्लामी तारीख के एक और वाक़ये में एक नौजवान को उसकी बदकिस्मती से एक जिन को उसकी असली शक्ल में देखने का मौका मिला। इस कहानी को कई क्लासिकल इस्लामी उलमा ने बयान किया है, जिनमें इमाम इब्ने कसीर भी शामिल है। अपनी किताब अल बिदाया वन निहाया में वो नौजवान रात के वक्त एक सुनसान इलाके से अकेला गुजर रहा था कि अचानक उसने अपने सामने एक बहुत बड़ी मखलूक खड़ी देखी। वो मखलूक इतनी लंबी थी कि उसका सर आसमान को छूता हुआ लग रहा था। उसका जिस्म काले धुएं के सुतून जैसा था, जिसमें आग की लिपटें झिलमिला रही थी, और उसकी आंखें जलते हुए कोयलों जैसी थी, जिन्होंने आसपास के अंधेरे को रोशन कर दिया था। वो नौजवान खौफ से पैरालाइज्ड हो गया, न हिलने के काबिल रहा, न बोलने के। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। जिन ने उससे ऐसी आवाज में बात की जिसने जमीन हिला दी। उसने कहा, डरो मत, मैं एक मुसलमान जिन हूं और मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे तुम्हें अपनी शक्ल दिखाने की इजाजत दी गई है ताकि तुम हमारे वजूद की हकीकत को समझो और लोगों को हमारे बारे में डराओ। जिन ने फिर गैब की दुनिया के पहलू समझाने शुरू किए, बयान किया कि जिनों की सोसाइटी कैसे काम करती है, वो अल्लाह की इबादत या नाफरमानी कैसे करते हैं, वो इंसानों के साथ बिना नजर आए कैसे इंटरैक्ट करते हैं, और इंसानों के लिए ये कितना खतरनाक है कि वो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करने के बजाय जिनों से मदद मांगे। गुफ्तगू खत्म होने के बाद जिन गायब हो गया और वो नौजवान दौड़कर करीबी मस्जिद में गया, जहां उसे कुछ उल्मा मिले और उसने उन्हें सब कुछ बता दिया जो हुआ था। उसने जिन को इतनी डिटेल के साथ डिस्क्राइब किया कि सुनने वालों को यकीन हो गया कि वो सच बोल रहा है। उस दिन के बाद से उस नौजवान ने अपनी जिंदगी लोगों को जिनों और जादू से डील करने के खतरात के बारे में डराने के लिए वक्फ कर दी, और वो अपनी इबादत और अल्लाह की फरमाबरदारी में बहुत मोहतात हो गया, ये जानते हुए कि इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर मखलूकात हमें देख रही हैं और किसी भी वक्त जाहिर हो सकती है। इस्लाम के उलमा ने वाज़ेह किया है कि कुछ ऐसे वक्त और जगहें हैं जहां इंसानों और जिनों की दुनिया के दरमियान की रुकावट पतली हो जाती है, जिससे सामना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनमें मगरिब और इशा की नमाजों के दरमियान के वक्त शामिल है, जब अंधेरा छा जाता है और जिन ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वालिदैन को खबरदार किया था कि इस वक्त अपने बच्चों को अंदर रखें, क्योंकि शैतान ज़मीन पर बड़ी तादाद में फैल जाते हैं। इंसानों और जिनों के मिलने के सबसे खतरनाक तरीका जादू और सिहर के जरिए है। कुरान और ऑथेंटिक हदीसें इस बात पर बिल्कुल वाज़ेह हैं कि जादू हकीकत है, ये वजूद रखता है, और ये उन बड़े गुनाहों में से एक है जो अगर कोई करे तो उसको इस्लाम से खारिज कर सकता है। जादू एक इंसानी जादूगर और जिन के दरमियान ताऊन से काम करता है। आम तौर पर
बागी शैतान होते हैं जो जादूगर को इस शर्त पर मदद देने के लिए राजी होते हैं कि जादूगर कुफ्र और गुनाह के काम करेगा। ये अमल आम तौर पर तब शुरू होता है जब कोई जादू सीखने वाला जादू सिखाने वाले उस्ताद के पास जाता है। उस्ताद उसे कुफ्र के मुख्तलिफ अमाल सिखाता है, जैसे कुरान की आयतों को नापाक चीजों से लिखना, अल्लाह माफ करे, कुरान पर पाँव रखना या उसे जलाना, शैतान को सजदा करना या कब्रिस्तानों में गैर अखलाकी काम करना। इन घिनौने कामों के जरिए वो शख्स शैतानों को साबित करता है कि वो अल्लाह के इनकार करने और झूठी ताकतों की इबादत करने के लिए तैयार है। इसके बदले में शैतान जादूगर की खिदमत करने का वादा करते हैं। मखसूस काम करके जब कोई जादूगर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वो एक रिचुअल करता है जो उसके एलाए जिन को बुलाता है। ये जिन फिर विक्टिम के पास जाते हैं और उन पर मुख्तलिफ तरीकों से असर अंदाज होना शुरू कर देते हैं। कुछ किस्म के जादू ऐसी जिस्मानी बीमारियां पैदा करते हैं जिन्हें डॉक्टर्स एक्सप्लेन या ठीक नहीं कर पाते। इंसान को मुसलसल दर्द, कमजोरी और थकान महसूस होती है, लेकिन तमाम मेडिकल टेस्ट नॉर्मल आते हैं क्योंकि इसकी वजह जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी होती है। दूसरे किस्म के जादू दिमाग पर असर करते हैं जिससे शिकार को आवाजें सुनाई देती हैं, खौफनाक तस्वीरें नजर आती हैं, हर रात पूरे ख्वाब आते हैं या बेतुके डर और ऑब्सेशंस पैदा हो जाते हैं। सबसे बदनाम जादू को सिहरे तफरीक कहा जाता है, जो जुदाई का जादू है, जिसका मकसद शादियों और रिश्तों को तबाह करना होता है। इस काम पर लगाए गए जिन शौहर और बीवी के दिलों में वसवसे डालते हैं, छोटी परेशानियों को बहुत बड़ा बना देते हैं, उन्हें सिर्फ एक दूसरे की बुरी बातें याद दिलाते हैं, उनके दिलों को गुस्से और नफरत से भर देते हैं जहां कभी मोहब्बत थी, यहाँ तक कि आखिरकार वो एक साथ रहने को बर्दाश्त नहीं कर पाते और अलग हो जाते हैं। खौफनाक हकीकत यह है कि जादू के बहुत से केसेस में जिन असल में शिकार के जिस्म में दाखिल हो जाता है, उस पर कब्जा कर लेता है और उसकी हरकतों को कंट्रोल करता है। जब कोई जिन किसी इंसानी जिस्म पर कब्जा करता है तो अजीब और डरा देने वाली चीजें होती हैं। उस शख्स की आवाज बिल्कुल बदल जाती है। कभी कभी वो ऐसी आवाज में बोलते हैं जो नामुमकिन हद तक भरी होती है, या ऐसी जबानों में बोलते हैं जो उन्होंने कभी सीखी ही नहीं। उनकी जिस्मानी ताकत में ड्रामेटिकली इजाफा हो जाता है। कभी कभी एक छोटा कमजोर शख्स इतना ताकतवर हो जाता है कि कई जवान मर्द भी उसे पकड़ नहीं सकते। इस्लामी उलमा जो रुकिया यानी कुरानिक हीलिंग के जरिए ऐसे केसेस को ट्रीट करने के एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने इस पोजेशंस को फर्स्ट हैंड देखा है। वो बयान करते हैं कि कैसे वो उस कब्जे वाले शख्स पर कुरान पढ़ते हैं और अचानक जिन उस शख्स के मुंह से बोलने लगता है, अपनी पहचान करवाता है, बताता है कि वो इस जिस्म में क्यों दाखिल हुआ है। कभी कहता है कि उसे किसी जादूगर ने भेजा था, कभी दावा करता है कि उसे शिकार से इश्क हो गया था, और कभी कहता है कि शिकार ने अनजाने में उसे नुकसान पहुंचाया था और अब वो बदला ले रहा है। यही वजह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें हिफाजत की इतनी सारी दुआएं सिखाई और इन्हें रोजाना पढ़ने की अहमियत पर जोर दिया। हर सुबह और शाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान की आखिरी 3 सूरतें अल इखलास, अल फलक और अन्नास 3-3 बार पढ़ते, फिर अपने हाथों में फूंक मारते और अपने जिस्म पर फेर लेते। उन्होंने हमें सिखाया कि सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ें, किसी भी जगह दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह कहें, गुस्सा या डर आने पर अल्लाह की पनाह मांगे, अपनी 5 वक्त की नमाज पाबंदी से कायम करें क्योंकि नमाज शैतान के खिलाफ ढाल है। जहाँ तक हो सके वुजू में रहें क्योंकि शैतान पानी और पाकी से कमजोर होता है। पाबंदी से कुरान पढ़ें क्योंकि जिन घरों में कुरान पढ़ा जाता है वहां से शैतान भाग जाते हैं, और गुनाहों से बचें क्योंकि हमारा किया गया हर गुनाह शैतान के लिए हम पर हमला करने का रास्ता खोलता है। इंसानों के जिनों को देखने के बारे में इन तमाम हकायक पर गौर करने के बाद हमें बुनियादी सवाल की तरफ वापस आना चाहिए कि अल्लाह ने उन्हें हमसे छुपा कर क्यों रखा है। इसका जवाब तब वाज़ेह होता है जब हम इस दुनियावी जिंदगी में टेस्ट और ट्रायल्स यानी आजमाइशों की नेचर को समझते हैं। अल्लाह ताला सूरह अल मुल्क की आयत नंबर 2 में फरमाता है, जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से बेहतर अमल करने वाला कौन है। बेशक ये जिंदगी एक आजमाइश है और इस आजमाइश का तकाजा है कि हम फिजिकल नजर आंख से देखने के बजाय अपने ईमान की बुनियाद पर गैब पर यकीन रखें।
अगर हम जिनों को मुसलसल देख सकते, अगर हम अपने अमाल लिखने वाले फरिश्तों को देख सकते, अगर हम अल्लाह के अर्श और जन्नत और जहन्नुम को देख सकते, तो फिर कोई आजमाइश ही नहीं होती, कोई टेस्ट ही नहीं होता और हमारे ईमान का कोई दर्जा ही नहीं होता, क्योंकि तब हम दिल से यकीन करने के बजाय उस पर यकीन करते जो हम देख रहे हैं। असल आजमाइश ये है कि क्या हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर चलेंगे, हालांकि हम उन हकायक को नहीं देख सकते जिनका वो जिक्र करते हैं। क्या हम दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ेंगे, भले ही हम नमाज के वक्त नाजिल होने वाले फरिश्तों को नहीं देख सकते। क्या हम गुनाहों से बचेंगे, हालांकि हम उस शैतान को नहीं देख सकते जो हमें बुराई की तरफ उकसाता है। क्या हम कुरान की तिलावत करेंगे, हालांकि हम उसकी आयतों से भागने वाले शैतानों को नहीं देख सकते। क्या हम अपनी नीयत साफ रखेंगे, हालांकि हम अपनी हर सोच और अमल लिखने वाले फरिश्तों को नहीं देख सकते। ईमान का उसूल ही यही है कि गैब पर यकीन करना और उस पर अमल करना, और जो लोग अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे की बुनियाद पर ऐसा करते हैं उन्हें सबसे अजीम अजर मिलेगा। आजकल कुछ लोग जिनों को लेकर बहुत मुतासिर हैं, उनसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं, उनसे फ्यूचर के बारे में सवालात करते हैं, दुनियावी मामलात में उनसे मदद मांगते हैं, यहाँ तक कि उनसे दोस्ती करने या शादी करने की कोशिश करते हैं। ये सब इस्लाम में शदीद खतरनाक और हराम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जिनों से मदद मांगना शिर्क की एक किस्म है, यानी अल्लाह के साथ शरीक ठहराना। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन रहनुमाइयों को क्लियर कर दिया है। अगर आप अपने घर में किसी जिन को सांप की शक्ल में देखते हैं तो आपको कुरान पढ़कर या जोर से ये कहकर 3 बार वॉर्न करना चाहिए, मैं तुमसे उस अहद के वास्ते पुकार रहा हूँ जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तुमसे लिया था कि इस घर से निकल जाओ। अगर 3 बार वार्निंग देने के बाद भी सांप वहीं हो तो आप उसे मार सकते हैं, क्योंकि उसने साबित कर दिया है कि वो एक बागी शैतान है। अगर आप जिनों की मौजूदगी महसूस करें पर उन्हें देख ना सके तो आप अल्लाह की पनाह मांगे। आयतुल कुर्सी, सूरा अल बकरा की आखिरी 2 आयतें, सूरा अल इखलास, सूरा अल फलक और सूरा अन्नास पढ़कर अगर आपको अजीब आवाज़ें आती हैं या मूविंग शैडोज या हिलती परछाइयाँ दिखती हैं तो आप नमाज, जिक्र, कुरान की तिलावत और गुनाहों से बचने के जरिए अपने ईमान मजबूत करें, क्योंकि अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक तमाम बुराइयों के खिलाफ सबसे बेहतरीन हिफाजत है। अगर आपको शक है कि किसी ने आप पर जादू किया है या आप पर जिन का कब्जा है तो आप किसी नेक इस्लामी आलिम के पास जाएं जो सुन्नत के मुताबिक रुकिया करते हो, ना कि किसी नजूमी या जादूगर के पास जो आपकी कंडीशन और ख़राब कर देगा। अल्लाह हम सबको उसकी पैदा की हुई मखलूक के शर से बचाए, जिनों और इंसानों के शर से, पीछे हटने वाले वसवसे डालने वालों के शर से, उन लोगों से जो लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं और शक व फसाद फैलाते हैं। अल्लाह हमें मजबूत ईमान, खालिस इबादत और तमाम बुराइयों से हिफाजत अता फरमाए, चाहे वो जाहिर हो या गैब। अल्लाह हमें उन लोगों में से बनाए जो उसकी भेजी हुई हिदायत की बुनियाद पर गैब पर ईमान रखते हैं, और अल्लाह हमें जन्नत में अपने पाक चेहरे का दीदार अता फरमाए, जो उन लोगों के लिए सबसे अजीम इनाम है जो गैब की दुनिया के हकायक ना देखने के बावजूद ईमान पर कायम रहते हैं। आमीन।